Assalamu alaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So today in this video, we are going to learn about the secondary active transport. I already have made videos on the passive transport and the primary active transport through the cell membrane. I suggest you guys to watch those videos first. I'm going to mention the link in the description box. Now coming to the secondary active transport, this is also a type of active transport. Secondary active transport is a form of active transport across a biological membrane in which a transported protein couples the movement of an ion, जो कि typically सोडियम या प्रोटॉन होता है, down its electrochemical gradient to the uphill movement of another molecule or ion against a concentration gradient or electrochemical gradient. So what basically it means? Secondary active transport भी एक active transport है. It means that it also requires energy. But what happens in secondary active transport is that जो transported protein होती है, for example, if this is the cell membrane and this is the transport protein present in it, what this transport protein do is that if, for example, we have two ions, ion A and ion B inside and outside the cell. The ion A is more outside and less inside. Ion A सेल के बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और सेल के अंदर कम है, while the ion B is more inside and less outside. So what happens or what the transported protein do in case of secondary active transport? जो transported protein होगी वो एक आयन को along the concentration gradient transport करेगी, that is from its higher concentration to its lower concentration, while another ion is actively transported along with that ion from its lower concentration to its higher concentration. एक आयन की मूवमेंट होगी along the concentration gradient और उसी के एक्सपेंस पर वही एनर्जी यूटिलाइज होगी to transport another ion from its lower concentration to its higher concentration, which is active transport. तो एक जो आयन होगा उसकी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगी और वो आयन टिपिकली सोडियम होता है मोस्टली. सोडियम यूजुअली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डाउन हिल ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ आउटसाइड द सेल टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल. फिर सोडियम के एक्सपेंस पर दूसरा जो आयन होता है उसकी अप हिल मूवमेंट होती है, दैट इज़ फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट कुड बी एनी आयन. Thus, energy stored in the electrochemical gradient of an ion is used to drive the transport of another solute against a concentration or electrochemical gradient. Now, here is the difference in between primary active and secondary active transport. ये मेजर डिफरेंस है सेकेंडरी एक्टिव और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और जो आयंस होते हैं वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं. जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है उस आयन का जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा. बिकॉज वी नो कि जहाँ आयन कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होता है वहाँ उसमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उस जगह से उस जगह पर मूव कर जाए जहाँ वो कम है. उस आयन के अंदर उस नेचुरल टेंडेंसी की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. सो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें दो तरह के आयन्स मिलेंगे. एक होगा ड्राइविंग आयन, वो आयन जो ड्राइव करेगा दूसरे आयन को, मतलब ड्राइविंग आयन वो होगा जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल द ड्राइविंग आयन इज सोडियम. सोडियम इज द ड्राइविंग आयन. जबकि एक होगा ड्राइविंग आयन जिसे सोडियम ड्राइव करेगा अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. So in this case, ion B is driven ion. So now, in secondary active transport, the free energy needed to perform active transport is provided by the concentration gradient of the driving ion. मतलब secondary active transport में जो free energy utilize हो रही है active transport करवाने के लिए किसी भी आयन को अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाने के लिए जी वो फ्री एनर्जी कहाँ से डिराइव हो रही है, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्राइविंग आयन. दैट इज़ वाई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेकेंडरीली एक्टिव. दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वाई इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Because as we know
that sodium is typically used in secondary active transport. एंड वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है कि सोडियम की बाहर आउटसाइड ऑफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा पंप मेंटेन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, एंड दैट पंप is basically a primary active transporter. So the concentration gradient that is utilized in the secondary active transport is basically maintained by the primary active transport. That's why this transport is secondarily active. That is, it depends on the primary active transport. जब primary active transport होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में और सोडियम की concentration outside of the cell ज़्यादा maintain होगी, तब जाके secondary active transport होगा. So till now it is clear that the free energy that is used in the secondary active transport is basically the energy that is provided by the concentration gradient of the driving ion. जो ion along the concentration gradient drive हो रहा है, उसी की energy utilize होगी दूसरे ion को against the concentration gradient move करवाने में. So now the types of secondary active transport. अब secondary active transport की कितनी types हैं? There are basically two types of secondary active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वो ट्रांसपोर्ट जिसमें दो आयंस एट अ टाइम ट्रांसपोर्ट होंगे. एक आयन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, उसी की एनर्जी के एक्सपेंस पर जो दूसरा आयन होगा वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वन ऑफ दैम इज द सिमपोर्ट एंड द अदर इज द एंटीपोर्ट. वी कैन ऑल्सो कॉल सिमपोर्ट एज को ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट एज काउंटर ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली सिमपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो दो आयंस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इन सिमपोर्ट जो दोनों आयंस हैं उनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है. वाइल इन केस ऑफ एंटीपोर्ट या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट जो दो आयंस हैं उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है. एक आयन अंदर जा रहा है तो दूसरा आयन बाहर की तरफ मूव कर रहा है. However, in both of these processes, एक आयन along the concentration gradient मूव करेगा और दूसरा आयन against the concentration gradient मूव करेगा. So now starting with the co-transport और symport, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों जो आयन्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. इन co-transport, the direction of transport is the same for both the driving ion and the driven ion or molecule. को ट्रांसपोर्ट या सिमपोर्ट में क्या होता है कि जो ड्राइविंग आयन होता है जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा और जो ड्राइविन आयन होता है जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. सो नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ को ट्रांसपोर्ट? द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर दैट इज़ फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी proximal tubules simultaneously transport two sodium ions and one glucose molecule into the cell across the plasma membrane. So what is basically happening here? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में बहुत एबंडेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है? दिस ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट टू सोडियम आयंस एंड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन टू दी सेल. मतलब दो सोडियम आयंस एट द सेम टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल into the cell transport हो रहे हैं. that is their direction is same. So this diagram is basically showing the proximal renal tubular lumen. जो नेफ्रॉन की proximal convoluted tubule होती है उसका ये ल्यूमेन है. उस ल्यूमेन को सराउंड करने वाली ये proximal tubular epithelial cells हैं और फिर दूसरी तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जिसमें ब्लड है. Let me draw a rough diagram of nephron. This is the Bowman's capsule of nephron that contains glomerulus. Glomerulus are basically capillary network. From the Bowman's capsule arises the proximal convoluted tubule and then the loop of Henle. Then comes the distal convoluted tubule and then the collecting duct. So this is basically the structure of nephron. अब नेफ्रॉन के किस पार्ट की बात हो रही है? बेसिकली नेफ्रॉन की proximal convoluted tubule की बात हो रही है. This is the proximal convoluted tubule of nephron. This is proximal convoluted tubule and this is distal convoluted tubule.
हम बेसिकली इस वक्त प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैग्नीफाई कर देख रहे हैं. सो इफ़ वी मैग्नीफाई दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ बेसिकली अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर मैं इस कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को खोल दूँ तो इट विल बिकम straight tube. Now let me draw this proximal convoluted tubule in a more magnified way. So if I magnify this structure, what will it become? This is the lumen of the proximal convoluted tubule. These are the proximal tubular epithelial cells. These are the peritubular capillaries that runs along these cells. इन peritubular capillaries में blood है. इस ल्यूमिन में भी ब्लड जा रहा है. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है कि जो ब्लड इस ल्यूमिन से जा रहा है उससे असेंशियल आयंस को जो बॉडी की नीड है उनको एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर करवाना. क्योंकि नेफ्रॉन में ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, जो ब्लड आगे जाएगा वो अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्म इख्तियार करेगा. प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करे और उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर करवाए. दे देन रिटर्न दिस ब्लड बैक टू सर्कुलेशन. सो दिस इज़ बेसिकली गिवन हियर. यही डायग्राम यहाँ पर मैग्नीफाई होकर दिखाई हुई है. ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं. सेल्स के एक तरफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ल्यूमिन है और सेल के दूसरी तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं. अब इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम ये है कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर करवाएं. सो नाउ एज वी कैन सी दैट दिस इज़ द फिल्ट्रेट दैट इज़ पासिंग थ्रू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. वो फिल्ट्रेट है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजर रहा है. नाउ दिस फिल्ट्रेट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम एंड लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स में ज़्यादा है और फिल्ट्रेट में कम है, और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट में ज़्यादा है और विद इन द सेल कम है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस, जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा वो क्या करेगा कि वो इस फिल्ट्रेट से ग्लूकोज को पिक करेगा विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट. बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ग्लूकोज, सेल्स की नीड है ग्लूकोज. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दिस, सोडियम विच इज़ मोर इन द फिल्ट्रेट will move along the concentration gradient. सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज़्यादा है, तो it will diffuse, it will move from outside the cell, from the filtrate into the cell along with taking glucose against its concentration gradient. ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा वो सोडियम को along the concentration gradient ट्रांसपोर्ट करवाएगा और इसी के एक्सपेंस पर ग्लूकोज को against the concentration gradient सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाएगा. सो इन दिस वे ग्लूकोज विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट वो फिल्ट्रेट से एक्सट्रैक्ट होगा और सेल के अंदर आएगा अलॉन्ग विद सोडियम दैट इज़ प्रेजेंट मोर आउटसाइड द सेल दैन इनसाइड. तो बेसिकली क्या हुआ, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हुई? सोडियम के अंदर जो एक नेचुरल टेंडेंसी थी, जो उसकी एनर्जी थी वो यूटिलाइज हुई और उसकी एक्सपेंस पर सोडियम अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा और ग्लूकोज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाएगा. फिर यहाँ से ये ग्लूकोज एंटर हो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंड देन रिटर्न बैक टू द सर्कुलेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इज़ the counter transport or is also called as antiport. Why it is called antiport or counter transport? Because the direction of both the ions, that is the one that is moving along the concentration gradient and the other that is moving against the concentration gradient is different. So in counter transport the direction of transport is different for the driving ion and the drive-in ion. We know ड्राइविंग आयन कौन सा होता है? ड्राइविंग आयन वो होता है जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और ड्राइव इन आयन वो होता है जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है. इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर ड्राइविंग आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा तो जो ड्राइव इन आयन होगा वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा. सो कमिंग टू इट्स एग्जाम्पल, द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर found in cardiac muscle cell and elsewhere in the body transport 3 sodium ions into the cell in exchange of 1 calcium ion transported out of the cell.
सो बेसिकली कार्डियक मसल सेल में जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है वो क्या करता है कि वो बाहर से 3 सोडियम को अंदर ट्रांसफ़र करता है एंड एट द सेम टाइम on the expense of transferring sodium along the concentration gradient, it transport one calcium ion outside of the cell at the same time. जिस टाइम पर 3 सोडियम आयन्स अंदर मूव करेंगे बिल्कुल उसी टाइम पर एक कैल्शियम आयन बाहर मूव करेगा उसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से या उसी कैरियर प्रोटीन से. So here in this diagram we can see a sodium calcium exchanger. What this exchanger do is that it transports 3 sodium ions inside the cell and 1 calcium ion outside the cell. And this transport occur on behalf of the electrochemical gradient of sodium. ये सोडियम के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बिहाफ पर हुआ है बिकॉज सोडियम इज प्रेजेंट मोर आउटसाइड द सेल. So this electrochemical gradient act as driving force for the calcium ions to move outside the cell. अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बेसिस पर सोडियम इनसाइड द सेल मूव करेगा एंड एट द सेम टाइम कैल्शियम मूव्स आउटसाइड द सेल. So one calcium ion moves outside the cell on the expense of 3 sodium ions that moves inside the cell. So this is basically antipode in which the direction of the moving ions is different. जिसमें डायरेक्शन जो है आयंस की वो बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो हियर इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप. ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी का डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है तो आयंस जो होते हैं उनका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उनकी मूवमेंट होती है. एंड ड्यू टू दिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑक्यूरिंग. इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो हमारे सेल का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो चल रहा होता है. एज वी कैन सी दैट बोथ द एंटीपोर्ट एंड द सिम्पोर्ट रिक्वायर द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्योंकि सोडियम की जो आउटसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर विच इज़ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ही मेंटेन कर रहा होता है. एंड दिस सोडियम इज दैन यूटिलाइज्ड फॉर बोथ द सिम्पोर्ट and the antiport. So this is all about the secondary active transport. If you like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you.